In any competitive exam, math is an important topic. Quantitative aptitude is an important topic, and most of the students faces problem with math because generally math में MCQ type of question comes wherein the students have to give the answer in 40 seconds to 1 minute. Now, the biggest problem with math is that since if you have to give the answer in 40 seconds to 1 minute, your concept has to be very, very good. You should know all the tricks that how to write the questions, how to write the numbers, and how to solve the questions. And the third most important thing that you should know is how to improvise your calculation. अपनी calculation एकदम मक्खन के जैसे कैसे चले, that has to be done. And बहुत सारे students का ये issue होता है कि they know the concept, they have learned maths, so they know the concept, they know the tricks, but they don't know how to make the calculation fast because they don't know the tricks related to calculation. So calculation improve करने के सिर्फ दो तरीके हैं. एक है practice first of all, and second is that you should know some of the tricks to improve your calculation. बहुत जगह पे बहुत सारे ट्रिक्स दिए हैं, आपको हर ट्रिक्स फॉलो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो ट्रिक आपको आना चाहिए जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपको यूज करना है. सो इन टुडेस सेशन इज हैंस टुडेस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है दैट इज स्पीड मैथ, वैदिक मैथ, कैलकुलेशन. तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है, कौन सी बेसिक बेसिक ट्रिक्स हम बताएंगे जिसके थ्रू आप आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हो. So today's module is very important. So let me share the screen with you. Okay. So this module that is speed math, or you can say calculation, this we have divided into three parts. The first part is calculation itself. आज वाला जो मॉड्यूल है उसमें हम कैलकुलेशन पे, प्योर कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, wherein we will learn कि how to do addition, how to do subtraction, multiplication कैसे फास्ट किया जाए. In the second module we will learn how to find the squares of a number mentally, how to find the square root, how to find the cube root. And in the third module जहां पर स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है that is fraction and decimal. So in the third module we will see कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डेसिमल में हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड, हाउ टू डिवाइड, all those things we will see. Today's module we will learn about calculation. So calculation में हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि ऐड कैसे करना है फास्ट तरीके से, how to subtract the numbers, how to multiply the numbers, how to divide the numbers, and we will learn some simple and beautiful tricks. Okay, so let's start with the सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स आएगा तो आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए. सो मैथ्स आएगा और टेबल्स ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो यू शुड नो द टेबल्स फ्रॉम 1 to 20, squares to 1 to 30, and cube to 1 to 15. This is the bare minimum thing you should know if you have to clear quantitative aptitude. इन लोगों के बगैर, इनफेक्ट यहाँ पर और लास्ट पार्ट इज स्पीड मैथ्स एंड सिंप्लीफिकेशन, इनके बगैर कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हो सकती. इसके बगैर मैथ क्लियर करना इज जस्ट इम्पॉसिबल. ओके, सो ये सब चीजें आपको मारनी है रट्टा. टेबल स्टिल 20, स्क्वायर स्टिल 30, एंड क्यूब स्टिल 15. दिस इज द bare मिनिमम थिंग यू शुड नो. प्लस स्पीड मैथ आना चाहिए, जो आज हम तीन मॉड्यूल्स में हम जो करेंगे वो चीजें आनी चाहिए. एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन एकदम इजी तरीके से, फास्ट तरीके से हो. फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस एवरी डे. यू कैन स्टार्ट विथ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट अगर आप 1 घंटा मैथ करते हो तो बहुत जरूरी है कि उसमें से 20 मिनट्स should be given to calculation. First 20 minutes you have to give it to the calculation. Okay, so tables you should know till 20. Okay, let's start with the addition. कोई भी नंबर को ऐड करना है तो क्या करेंगे. For an example, if I want to do 58 plus 60, तो 58 plus 60 को कैसे ऐड करेंगे. So all these things have to be done mentally. Okay, ऐसा नहीं करना है 58 plus 60 लिख के. This is how we will not do. Okay, the things has to be done in mind. Initially that will take time, but practice से mind में calculation बहुत fast होती है. So first is 58 plus 60. So how we will add this? So हम क्या करेंगे, 58 को हम ऐसे consider कर सकते हैं that this is nothing but 60 minus 2. So we will do 60 plus 60 and then we will do minus 2. 60 plus 60 is 120.
120 minus 2 is 118. Next, 420 plus 113. अभी हम क्या करेंगे in this particular case? 113 के टुकड़े कर देते हैं. 113 is nothing but 100 plus 10 plus 3, correct? So 420 में first we will add 100. So 420 plus 100, 520. 520 plus 10, 530. And 530 plus 3, 533. This thing has to be done mentally. Next, 637 plus 307. So first what we will do? First we will add 300 and then we will add 7. So 637 plus 300 is 937. 937 में अगर और 7 जोड़ दो, so it will become 940. 39 plus 36. Okay, so 39 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 minus 1. So we will do 36 plus 40, 76. 76 minus 1, 75. Next, 92 plus 118 plus 356. Okay, how to add this? Now here 92 को 100 बनाने के लिए 8 नंबर की और जरूरत है, तो ये 8 यहां से ले लेते हैं. So this will become 110 and this will become 100. Correct? So it is 100 plus 110 plus 356. So what we will do? 356 plus 100, 456. 456 plus 10, 466. And 466 plus 100, 566. This is how we can get the answer. Next, 79 plus 80. Okay, so 80 we will write as 79 को हम लिखेंगे 80 minus 1. So it is 80 plus 80, 160 minus 1. That is equal to 159. 576 plus 90. 90 को we can write as 100 minus 10. So 576 plus 100. 676. 676 minus 10. 666. 472 plus 872 plus 496. Now 496 is close to 500. So इसको हम लिखेंगे 500 minus 4. Now 872 plus 500 कितना होता है? 1372. 1372 में से 4 subtract करोगे, so it is 1368. 227 plus 235. So इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 227 plus 235. 235 को क्या लिख सकते हैं? We can write like this. 235 is nothing but 227 plus 8. This is how we can write. Okay. Why I have done this? Because यहाँ पर 227 था, तो यहाँ पर भी 227 बना दिया. Now 227 plus 227 means 227 का double. That is equal to 454. And 454 में अगर आप 8 जोड़ दोगे, so it is 460. So this is how you can do addition. जहां जहां possible है, consciously ख्याल रखो कि आप ट्रिक का ही यूज करोगे. Next, subtraction. Let's see how to do subtraction in fast way. 564 minus 465. So here you can see कि ये 64 है, ये 65 है. Very close number. So क्यों ना इसको हम ऐसा लिख दे 465 को. Okay, this can be done like this. 564 minus 465 को ऐसा लिखते हैं 464 plus 1. So this is nothing but 564 minus 464 minus 1. 564 minus 464 is 100 and 100 minus 1 is 99. Once again, all these things has to be done mentally. हाँ, ये लिखना नहीं है. Okay. Next, 573 minus 375. तो क्यों ना इसको 73 बना दे और 2 और माइनस कर दे. So this is how we can do. So this is 573 minus 373, which is 200. 200 minus 2 is 198. Now 356 minus 148. So कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर केस में? 56 minus 48 अगर हम करते हैं, 56 minus 48 is 8 and 0. It is 08 and 3 minus 1 is 2. So answer is 20. This is how we can do subtraction also. Now, multiplication of two-digit numbers. For an example, if I want to do 23 into 66, most of the students, what they will do? Here they will write something, here they will write something, then they will add, and here also they will write something. ऐसा कुछ building बना के करेंगे. This is, we will not do this way.
टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक ही लेयर में खत्म करेंगे पूरा। ऐसा यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, प्लस करके ऐसे 3 माले का बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। वी विल राइट एवरीथिंग इन वन दिस फॉर्म ओनली एंड वी विल गेट द आंसर। कैसे करेंगे देखिए। टू डिजिट नंबर इज लाइक दिस, पैटर्न इज लाइक दिस। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। एंड थर्ड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। So this is the first step. We will multiply the last two digits. Second step में we will do the cross multiplication, and in the third step ये जो tens place पे जो number है उनका multiplication करेंगे. So basically what we will do, we will write here 3 place. 3 step है तो ऐसे 3 lines बना दिए. ठीक है. First step में क्या करना है? Units place का multiplication. So we will do 3 into 6. 3 into 6 is 18. But you have to be careful कि सिर्फ ये फर्स्ट प्लेस को छोड़ के बाकी हर जगह पे आप एक ही डिजिट लिखोगे। सो फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, 3 into 6 which is equal to 18. So we will write only 8 and 1 is carry forward. We have to write only 8 और आगे वाले को carry forward करेंगे। सेकेंड स्टेप में we have to do cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, अगर ऐसा है हमारा क्वेश्चन 23 into 66, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो we will do 2 into 6 plus 3 into 6. 2 into 6 12, 3 into 6 18, 18 plus 12 30. So here we will write 30. कैसे लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 3 carry forward. And next में 23 into 66, तो इसमें टेंस वाले प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. So it is 2 into 6 is 12. So here we'll write 12. अभी सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 is 8, 0 plus 1 1 and 12 plus 3 is, the answer is 1518. This is the answer. नेक्स्ट ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं, 57 into 42. How we will do this? The number is 57 into 40. 3 स्टेप में आंसर आएगा. फर्स्ट स्टेप में यूनिट्स प्लेस का मल्टीप्लीकेशन, सो 7 into 2 14, so here we'll write 4, here we'll write 1. नेक्स्ट स्टेप में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 5 into 2 10 and 4 into 7 28. So 28 plus 10 is 38. So we will write 8 here and 3 is carry forward. नेक्स्ट स्टेप में 5 into 4 20. So 20 as it is लिख देना है. अभी सबको ऐड कर देते हैं. So 20 plus 3 is 23. 8 plus 1 is 9 and 4. So answer is 2394. नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या क्या करना है. तो दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, ऐसा दिखेगा कुछ 3 डिजिट नंबर. फर्स्ट स्टेप में यूनिट्स प्लेस का मल्टीप्लीकेशन. सेकेंड स्टेप में और थोड़ा आगे जाना, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन. सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में ये जो है 100 प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस का इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, और ये बीच वाले का भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन, और तीनों मल्टीप्लीकेशन को ऐड करना है. धीरे धीरे लेफ्ट साइड राइट साइड से बढ़ते हुए आगे लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ना है. उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड द नेक्स्ट इज ये हंड्रेड्स का मल्टीप्लीकेशन. दिस इज हाउ वी विल डू. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ.
5 स्टेप है तो 5 लाइन बना देते। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपके नॉर्मल मेथड से करते तो 4 माले का बिल्डिंग बनाते, वो नहीं करना है, ये एक ही बॉक्स में सब खत्म करना है। ओके, सो 5 प्लेस, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनिट्स प्लेस का मल्टीप्लीकेशन, सो 7 into 3 21, so we will write 1 and 2 is carry forward. नेक्स्ट स्टेप में यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2 into 7 plus 5 into 3, 2 into 7 14, 5 into 3 15, so 14 plus 15 is 29, so 9 लिखेंगे to carry forward। ओ सॉरी, वेट यहाँ पर हम आंसर जो है 29 आया है, तो 29 में 2 भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो 29 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 31। 14 plus 15 is 29, 29 भी ये 2 भी ऐड करेंगे ना, तो 2 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, सो 1 and 3 कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनिट्स प्लेस को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 1 into 7 करना है, प्लस 1 into 3 करना है, एंड प्लस बीच वाला जो नंबर है 2 into 5 करना है। ठीक है, सो इट इज 7 plus 3 10, 10 plus 10 20, 20 में ये 3 ऐड करोगे तो 23, सो दिस इज 3 and 2 is carry forward। नेक्स्ट स्टेप में इनका, दिस इज द फोर्थ स्टेप, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस का मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज 1 into 5 5, 2 into 1 2, सो 5 plus 2 7, 7 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। एंड लास्ट वाले में 100 प्लेस का मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज 1 into 1, सो आंसर इज 1 9 3 1 1। ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। Next, if you want to multiply any number with 5, for an example 34 into 5, your first method is this, this is how you will solve the question, और आपका आंसर है क्या 170। Now this can be done in some different way also। कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो एक दूसरा मेथड भी है। What we can do here, see 34 into 5 can be written as 34 into 10 divided by 2। 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 by 2, so 5 को मैंने लिख दिया 10 by 2। So what we will do here is we will do 34 divided by 2 into 10। 34 का half is 17 and into 10 means पीछे 8। Now you all must be thinking कि इससे तो अच्छा हम यही कर लेते, इतना सारा steps लिखने से अच्छा। But the problem is that अगर आप इस method से करते हो, so you have to use your pen and paper, whereas this method can be done mentally। In short, what you have to do, हमने इस मेथड में क्या किया, what we did is we did 34 divided by 2 and 5 को 10 से रिप्लेस कर दिया। So if you have to multiply any number by 5, तो आप क्या करोगे, नंबर का आधा करोगे, पीछे एक जीरो लगाओगे, क्योंकि कोई भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना तो इट्स वेरी इजी, पीछे जीरो लगाना होता है, एंड इट इज इजी टू टेक द हाफ rather than multiplying it by 5। So how to solve this, what we will do here is 34 into 5 के लिए हम क्या करेंगे, 34 का हाफ 17, पीछे जीरो, हाफ करके जीरो, 46 into 5, so what we have to do, 46 का हाफ that is 23, पीछे जीरो, आंसर इज 230। 5 वाला तो इट्स स्टिल इजी, बट इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 25, तो उसके लिए तो आपको ट्रिक से ही करना है, बिकॉज इफ यू यूज योर नॉर्मल मेथड देन दिस इज हाउ यू विल डू 48 into 25। यहाँ कुछ लिखोगे, यहाँ कुछ लिखोगे, 1 सेकेंड प्लस करके यहाँ कुछ लिखोगे, वी कैनॉट डू दिस मच। ये आंसर जो है वो सिर्फ 2 सेकंड में आता है, तो क्यों इतना सारा करें। सो हाउ वी विल डू दिस, वेरी सिंपल, जो 5 के लिए किया था वैसा ही कुछ 25 के लिए भी करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल डू 48 into, we know that 25 is nothing but 100 divided by 4, so 25 की place पे I am writing 100 by 4, correct? So what basically we have to do is
we have to do 48 divided by 4 into 100. Now it is very easy to multiply a number by 100. सिर्फ दो zeros लगाने होते हैं. Okay. So 48 divided by 4 is nothing but 12. पीछे दो. 36 divided by 4. 25 के साथ जो नंबर है ना उसके बाजू वाले नंबर को 4 से डिवाइड करो. So 36 by 4 is 9. पीछे दो 0. 24 into 25. 24 divided by 4. पीछे दो 0. So 24 divided by 4 is 6. And पीछे दो 0. अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि जरूरी तो नहीं है कि हर नंबर 4 से डिवाइड हो जाए. बिल्कुल जरूरी नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू डू 26 into 20, तो हाउ यू विल डू दिस? वंस अगेन, इसको करने के दो मेथड है. एक में तो हम क्या करेंगे, 26 डिवाइड बाय 4 करेंगे. नाउ डिवाइड बाय 4 मींस व्हाट, कि आपको हाफ करना है फिर वापस हाफ करना है. सो 26 का हाफ इज 13. 13 का हाफ इज 6.5 एंड 6.5 into 100 करोगे, सो इट वुड बी 650. आंसर इज हियर 650. हाँ, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे. 26 into 25 को हम ऐसे भी कर सकते थे. अदर मेथड इज, हम क्या करेंगे, 26 में से 2 बाहर ले लेते हैं. 26 में से 2 बाहर ले लेते हैं. सो वी कैन राइट लाइक दिस, 13 into 2. करेक्ट. 26 कैन बी रिटर्न एज 13 into 2 into 25. सो हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें. बेसिकली दिस इज 13 into 50. 13 5 are 65. पीछे 0. ओके. सो 26 into 25 ऐसे ना करते हुए, ऐसे नहीं करना है. हमने क्या किया, बेसिकली 26 into 25 के लिए हमने क्या किया, हमें 25 को 50 बनाना था. 25 को 50 कैसे बनाएंगे? अच्छा, why we want to make 25 को 50? Why we have to do this? Because it is difficult to multiply a number by 25, but it is very easy wherein you can multiply a number by 50. 50 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई करना होता है. सो 25 को 50 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना. तो इस नंबर का हाफ कर दो, तो इसका हाफ हो जाएगा 30. Answer is 650. So this also you can get the answer. Now, if you want to multiply any number by 125, so once again, 125 is nothing but 1000 divided by 8. So what we will do, we will replace this 125 by 1000 by 8 into 60. So basically करना क्या है, 64 divided by 8 into 1000. 64 by 8 is 8, so it is 8000. ठीक है. वन सेकेंड, यहां पर कैसे करेंगे, तो क्या करना है, हमें नंबर को 8 से डिवाइड करना है. पीछे 3 0 लगाने हैं. 8 से डिवाइड करो, 3 zeros. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव टू डू 125 into 124, so divide this by 8, so 3 is the answer. और पीछे 3 0. Answer is, this is a very important trick to multiplication with 11. Very easy. 2 seconds will get the answer. For an example, if you have to do 23 into 11, हाँ, ये ट्रिक वहां ही लगानी है जहां पर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. How to do this? This is 2, so here we will write 2. This is 3, so here we will write 3. बीच में लिखेंगे 2 plus 3, यानी कि 5. So the answer is 253. Answer is 253. 2 लिखा, 3 लिखा, बीच में उनका एडिशन लिखा. Let's see. Here we have written 4. Here we have written 5. बीच में 4 plus 5, 9. This is your answer. Now let's see this number. 6, 7. 6 plus 7, 13. But कहानी में थोड़ा twist है. Here at any point of time you have to write only one digit. आपको सिर्फ और सिर्फ एक digit लिखना है. So 6 plus 7 is 13, but you cannot write 13 because you have to write only one digit. So you will write 3 and 1 is carry forward. So answer is 6 plus 1, 7. 7.
नेक्स्ट, अभी तक हमने 2 डिजिट नंबर किए थे. नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व 3 डिजिट नंबर. अभी तक जैसा कर रहा था एग्जैक्टली वैसे ही करना है. क्या करेंगे? फर्स्ट आई हैव रिटन 1 एंड हियर आई हैव रिटन 3. 1 एंड 3 के बीच में कुछ नंबर्स क्या लिखेंगे? सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड. यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है. एट अ टाइम टेक ओनली 2 डिजिट्स एंड ऐड देम. तो पहले क्या करेंगे? 3 + 2 करेंगे. ठीक है. फिर क्या करेंगे? आगे और आगे बढ़ते तो 2 + 1 करेंगे. So answer is 1. 2 + 1 3, 3 + 2 5 and 3. Answer is 1 3 5. One more example. Here we will write 1. Here we will write 5. पीछे से स्टार्ट करेंगे. At a time take only 2 digits and add them. So 5 + 4 9. Next step 4 + 3 7. Next step 3 + 1. आगे कुछ है? कुछ नहीं है. सो खत्म. Answer is 1 4 7 9. One more example. Here I will write 1. Here I will write 4. पीछे से स्टार्ट करेंगे. So 4 + 7 11. But we have to write only 1 digit. So 1 लिखेंगे और एक 1 carry forward. This is how you have to write 11. Next 7 + 6 13. So 3 लिखेंगे, 1 carry forward. Next 6 + 1 7. So answer is 1 8 4 1. If you have to multiply any number by 99 or 101, कैसे करेंगे? 123 into 99. ओके, 99 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 - 1. So we can write like this 123 into 100 - 1. If I open the bracket, ये कुछ इसके जैसा है, a into b minus c which is equal to ab minus ac. तो here if we open the bracket तो 123 को अंदर भेज देते हैं. So it is 123 into 100 minus 123 into 123 into 100 is 12300 minus 123 into 1 is this. 10 minus 3 7, 9 minus 2 7, 2 minus 1 1. So answer is 1 2 1 7. Once again, यहाँ पर जो भी लिखा है all these things have to be done in your mind. आपको पेपर पे तो सिर्फ इतना ही लिखना है. So next 65 into 99. So what we will do? We will do 65 into 100 minus 65 into 1. 65 into 100 is 6500 and minus 65 into 1 is 65. 100 में से 65 गया तो 35. So answer is 6435. तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि 101 के लिए क्या करेंगे. देखो 99 के लिए हमने क्या किया था? 100 - 1 किया था. 101 के लिए हम करेंगे 100 + 1. So what we will do? 123 into 100 that is equal to 12300 plus 123 into 1. 123 into 1 is 123 only. 3 12453. Sorry, 124 12423 is the answer. Next, 65 into 101. So what we will do? 65 into 100 that is equal to 6500 plus 65 into 1 that is equal to 65. So answer is 65 65. तो जैसे 99 101 के लिए किया था वैसे ही एग्जैक्टली 999 1001 के लिए भी करेंगे. 999 को वी कैन राइट एज 1000 - 1 and 1000 + 1 को we can write as 1000 + 1. So
999 into 325 कैसे करोगे? So basically this is 325 into 1000, which is 325,000 minus 325 into 1 is 325. 100 में से 25 75, 9 में से 3 6. Answer is 324,670. Similarly, 1001 into 325. So this is nothing but 325 into 1000, which is 325,000 plus 325 into 1, which is 325 only. Answer is 325. सपोज कोई नंबर को आपको ऐसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, 12 के टुकड़े कर दो. 12 कैन बी रिटर्न एज 10 plus 2. सो आपको सिर्फ ये करना है 423 into 10 plus 423 into 423 into 10 is 4230 and plus 423 into 2. 23 का डबल 46, 4 का डबल 8. So it is 6705076. नेक्स्ट ट्रिक. ये सब ट्रिक आपको याद रखनी है और कॉन्शियसली ख्याल रखना है कि व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स, यू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग ट्रिक ओनली. ठीक है. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो भी फैकल्टीज के लेक्चर्स देखते हो, जिनके भी लेक्चर्स आप अटेंड करते हो, जस्ट ऑब्जर्व देम हाउ दे डू द कैलकुलेशन. ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप आपके हिसाब से कर रहे हो. नो. अगर आप आपका ही मेथड पकड़ के रखोगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो ऑब्जर्व द फैकल्टी whose videos you are watching and just see how he is doing the calculation or how she is doing the calculation. ठीक है. और उनके मेथड को फॉलो करें, ऑब्जर्व करें और देखो कि वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या ट्रिक्स लगाते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम. नाउ इफ यू हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय इट्स नेक्स्ट नंबर, जैसे कि 12 इंटू 13 करना है, एक तो अपना ये ऐसे करो. दूसरा, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं. 12 इंटू 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं. 13 कैन बी रिटर्न एज 12 plus 1. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1. इन शॉर्ट, अगर हमें कोई भी नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो कि इस छोटे वाला जो नंबर है, छोटा वाला, उसका स्क्वायर ले लो. छोटा वाला नंबर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर विच इज 144 प्लस उसी नंबर को वापिस एक बार ऐड कर दो प्लस 2. आंसर इज 156. आप उल्टा भी कर सकते हो. क्या लेना है? अगर आपने छोटा नंबर लिया तो छोटा नंबर का स्क्वायर करो और उसमें उसी नंबर को ऐड करो. और अगर आप बड़ा नंबर ले रहे हो, जैसे कि आपको 13 लेना है, तो क्या करोगे? 13 का स्क्वायर करो और उसमें से 13 को ही माइनस कर दो. तो 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 13. दैट केस ऑल्सो द आंसर इज 156. ठीक है. सो इफ यू आर टेकिंग द स्मॉल नंबर देन ऐड, एंड इफ यू आर टेकिंग द बिग नंबर देन सब्ट्रैक्ट. once again 15 into 16. So what I will do? I will do 15 का स्क्वायर प्लस 15. स्क्वायर करने का फायदा क्या होता है ना, कि स्क्वायर आपको पता होता है. 15 इंटू 16 भले ही आपको ना पता हो, लेकिन 15 का स्क्वायर तो आपने रट्टा मारा है. सो 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 240. 21 इंटू 22 कैन बी रिटर्न एज 21 का स्क्वायर प्लस 21. 21 का स्क्वायर 441 प्लस 20. सो इट इज 46. हाँ, अगर आपको स्क्वायर्स नहीं आते तो नथिंग कैन बी डन, वो तो फिर मारना है रट्टा. नेक्स्ट ट्रिक, 12 इंटू 14. अच्छा, इसमें क्या था? 12 इंटू 13 था. 12 को अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे. यहाँ पर 12 को अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, मतलब 12 और 14 के बीच में एक नंबर आ रहा है 13. हम जो भी करेंगे ये इस नंबर 13 के ऊपर करेंगे. फर्स्ट लेट्स सी द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट कैसे है. ओके, सो 12 को हम 13 माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली 14 को वी कैन राइट एज 13 प्लस 1. ठीक है. ये किसके जैसा दिख रहा है? दिस वन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे? दिस इज नथिंग बट 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1, सो आंसर इज 168. इन शॉर्ट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है?
12 एंड 14 के एग्जैक्टली बीच वाला नंबर लेना है 13, जो कि इस केस में 13 है, उसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है, और ये जो डिफरेंस है 13 एंड 12 का, द डिफरेंस इज 1, उसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 16 इंटू 18, तो 16 और 18 के बीच में एग्जैक्टली 17 बैठा है, सो वी विल डू 17 का स्क्वायर माइनस 17 एंड 16, या फिर 17 एंड 18, द डिफरेंस इज 1, सो माइनस 1 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 18 इंटू 22, इनके एग्जैक्टली बीच में बैठा है 20, सो वी विल डू 20 का स्क्वायर माइनस 20 एंड 18 का डिफरेंस 2 होता है, सो 2 का स्क्वायर, so it is 400 minus 4, that is equal to 396. 15 into 21, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में बैठा है नंबर 18, so we will do 18 का स्क्वायर माइनस 15 एंड 18 का डिफरेंस इज 3, 3%। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जैक्टली बीच वाला नंबर नहीं आया, वो क्या करेंगे? जैसे कि सपोज द क्वेश्चन इज 12 इंटू 17, सो 12 इंटू, देखो अगर 12 इंटू 16 होता, इनके एग्जैक्टली बीच में बैठा है 14, बट 12 इंटू 17 के एग्जैक्टली बीच में है 14.5, तो फिर 14.5 का स्क्वायर कौन करेगा? सो दैट इज कंफ्यूजिंग, फिर उसमें आप ये ट्रिक मत लगाओ। इफ यू आर गेटिंग द एवरेज एज एग्जैक्टली द होल नंबर, then it's better to apply this particular trick. The next trick is multiplication when tens place is same and the sum of the unit digit is 10. Now this is a very easy trick, but इसमें दो कंडीशन है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है then only you have to apply the trick, otherwise don't apply the trick. ट्रिक क्या है, सॉरी कंडीशन क्या है? टेंस प्लेस इज सेम, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका 10 + 5 है, इसका 10 + 5 है, सो 10 प्लेस इज सेम, सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट इज 3, हियर द यूनिट डिजिट इज 7, दोनों का सम 10 होता है, सो यस सेकंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर निकालना बहुत इजी है। क्या करना है आपको? फर्स्ट यू हैव टू डू इज 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये जो बच गया है ना टेंस प्लेस पे 5, मल्टीप्लाई 5 बाय इट्स नेक्स्ट नंबर, तो 5 का नेक्स्ट नंबर इज 6, so you have to do is 5 into 6, 30, इसको यहाँ आपको लिखना and you have got the answer 3021। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, 4 into 6 24, फिर 5 को अपने नेक्स्ट नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सो आंसर इज 3024। नेक्स्ट 3 into 7 21, फिर टेंस प्लेस पे 7 है, तो 7 को अपने नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज 5 6 2। इनिशियली इट मे हैपन दैट यू कीप ऑन फॉरगेटिंग द ट्रिक्स, तो इस वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे तो आपको सभी ट्रिक्स याद रह जाएगी। Now this is a very beautiful trick, क्योंकि ये ट्रिक बहुत 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 जगह यूज होता है। ये ट्रिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन व्हेन वन ऑफ द नंबर इज एंडिंग विद 5, ये बहुत ही कॉमन टाइप का मल्टीप्लीकेशन है जो बार बार आएगा, तो ये ट्रिक तो आपको पता होना जरूरी है। Now here you can see that there are two numbers, one is 15 and one is 24, from that 15 is ending with 5, तो यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हो। ये ट्रिक वैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ। हम क्या करेंगे, इस 15 का डबल कर देंगे, तो 15 का डबल इज 30। अभी ऐसे तो डबल नहीं कर सकते ना, तो अगर इसका हम डबल कर रहे हैं, इसको इंटू 2 कर रहे हैं, तो ये वाला जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, सो दैट इफेक्ट इज नलिफाइड। तो हमें क्या करना है, 15 का डबल 30 एंड 24 का हाफ 12। नाउ 15 इंटू 24 करना मुश्किल है,
बट 30 into 12 करना तो इजी है, सो आंसर इज 360। हमने ये क्यों किया? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 0 आता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन बिकम्स इजी। कोई भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करने में टाइम जाता है, बट वी टेक वेरी लेस टाइम इन मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय 50। Once again we'll do the same thing here। 25 है तो 25 का डबल 50, तो 42 का हाफ करना पड़ेगा 21। 21 into 5 is 105, so answer is 1050। आप देख रहे हो कितने इजीली ये निकल रहा है। 35 into 36, इसमें तो हम वो वाला स्क्वायर वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं और इस वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो 35 का डबल कर देंगे 70 एंड 36 का हाफ 18 7s are 126। मल्टीप्लीकेशन विथ इट्स डबल। कोई भी नंबर, ये देख रहे हो ये नंबर 12 है और उसको अपने डबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू, इन प्लेस ऑफ 24 वी कैन राइट दिस एज 12 इंटू 2। 24 को 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर इज 144, 144 इंटू 2 इज 280। बहुत इजीली ये होता है। 13 इंटू 26 के लिए क्या करोगे? 13 का स्क्वायर लिखोगे और इंटू 13 का स्क्वायर 169 इंटू, वंस अगेन 169 इंटू 2 करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। 169 इंटू 2 को हम ऐसे करेंगे 170 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, 169 की जगह पे 170 माइनस 1 कर देंगे। तो 170 इंटू 2 इज 340 एंड 340 में से 2 गया तो 338। 21 into 42 can be written as 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इज 441 into 2, 4 का डबल 8, 41 का डबल 82। दिस इज द, okay, so in this particular module we have learned how to add the number, how to subtract the number, how to multiply the number, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आता है और सबसे ज्यादा टाइम भी उसी में लगता है। तो हमने बहुत सिंपल से ट्रिक्स करे हैं। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स है, वैदिक मैथ इज फुल ऑफ ट्रिक्स, लेकिन हर ट्रिक्स हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैदिक मैथ हमने ठीक से पढ़ा नहीं है। ठीक है, सो जो बेसिक ट्रिक्स है जो बार बार आते हैं, एटलीस्ट दोज वी कैन implement in our calculation so that our calculation becomes easy। So I hope you have understood my session, and if you like the way I teach then please subscribe to my channel ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी वीडियोस आता रहे वो आपको मिलता रहे। मेरा कोशिश होगा कि मैं एवरी वीक 3 वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, so that's it and keep on practicing math because math is easy। Thank you।